السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک وہ موضوع ہے 7 قسم کے جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے مارنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے وہ کون کون سے جانور ہیں جنہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان جانوروں کو اگر حرم کے اندر بھی، حرم کی جگہوں پر بھی اگر پایا جائے تو انہیں مارنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام جہان والوں کے لیے کیا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں رہنے والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، تمام جانوروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رحمت ہے کہ آپ نے انسانوں کی جان کو، مال کو بچانے کے لیے ان موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن جانوروں کو مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس تعلق سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی، کہا کہ ہم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلوهن في الحرم الغراب والهدعة والعقرب والفارة والكلب العقور۔ کہتے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں خبر دی، ہمیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب مضی ہیں، سب کے سب یعنی نقصان پہنچانے والے ہیں، اور انہیں حرم یعنی مکہ میں ان جگہوں میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ انہیں ان 5 قسم کے جانوروں کو حرم کی جگہوں میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کوا ہے، نمبر 2 چیل ہے، نمبر 3 چوہا ہے، اور نمبر 4 بچھو ہے، اور نمبر 5 کاٹنے والا کتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1829 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2867 اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2888 پر اس حدیث کے اندر 5 قسم کے جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیثوں کے اندر سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ مینا کے اندر غار میں ایک سانپ نظر آیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اتنے میں ایک سانپ نکلا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مارنے کے لیے۔ تو جیسے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھے وہ سانپ بھی بھاگ گیا،
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह से तुम उसके नुकसान पहुंचाने से बच गए वह भी तुम्हारे नुकसान पहुंचाने से बचकर निकल गया। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1830 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2232 और 5823। इसी तरह से इस हदीस से पता चला कि जो सांप भाग जाए उसको पीछा करके मारना नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछा करके मारने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि सांपों को दौड़ा करके उसका पीछा करके मारने से आपने मना किया है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2233 और 5825 पर। इसी तरह से घर के अंदर अगर सांप दिखाई दे तो उनको 3 दिन तक जाने की इजाजत दें। उनको कहें कि तुम्हें अल्लाह की कसम है तुम हमें नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि तुम इस घर से बाहर चले जाओ। 3 दिन तक अगर वो रुके रहें तो फिर उनको मारने का हुक्म है, और अगर वो चले जाएं तो उन्हें मारने का हुक्म नहीं है। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2233, 5831 और 2236 और 5841 पर देख सकते हैं। इसी तरह से घर के अंदर उन सांपों को मारने से भी मना किया गया। पहले मारने का हुक्म दिया, लेकिन बाद में मारने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि मना कर दिया गया। जो सांप धारीदार होते हैं, सफेद लकीरें होते हैं उनके ऊपर, इसी तरह से वो सांप जिनके दुम छोटे होते हैं, दुम कटे हुए होते हैं, उनको मारने का हुक्म दिया गया है। और पहले और उसके बाद जो है उनको मारने से मना कर दिया गया है घरों के अंदर, क्योंकि बताया गया है वजह यह कि वो सांप औरतों के हमल को गिरा देते हैं, बिनाई को छीन लेते हैं, यानी बिनाई जाया हो जाती है, आंखों की रोशनी खत्म कर देते हैं। उनके ऐसे असरात होते हैं जिसकी बिना पर उनको मारने का हुक्म नहीं दिया गया है। पहले हुक्म था, लेकिन बाद में मना कर दिया गया कि घरों के अंदर ऐसे सांपों को न मारा जाए, वरना यह नुकसान भी हो सकता है कि हमल वाली औरत के हमल गिर सकते हैं और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक उनको कहने का हुक्म दिया है जाने के लिए, इसलिए कि बहुत सारे जो सांप होते हैं वो जिन्नातों की शक्ल में होते हैं, जिन्नात सांप का शक्ल लिए होते हैं, लिहाजा अगर वो जिन होगा तो वो सुनेगा, उसको कान होगा, वो सुनेगा और वो चला जाएगा। और अगर कोई जहरीला जानवर होगा, जहरीला सांप होगा, तो वो नहीं सुनेगा, लिहाजा उसको 3 दिन के बाद मारने का हुक्म दिया गया है, उससे पहले नहीं। इसी तरह से छिपकली को क्यों मारने का हुक्म दिया गया है और इस ताल्लुक से क्या हदीस है, इसके बारे में उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था, फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिकतली अलवदगी, यानी छिपकली की एक किस्म गिरगिट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, छिपकली की एक किस्म गिरगिट भी है। जैसा कि आप देखते होंगे अपने माशरे में घरों के अंदर छिपकलियां पाई जाती हैं, इसी तरह से बाहर दरख्तों वगैरह पर जो गिरगिट होते हैं, इसी तरह से शहर में होते हैं। तो ये गिरगिट और छिपकली एक ही हैं, एक ही नस्ल के हैं। तो इनमें से जो भी हो इनको मारने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकतली अलवदगी, गिरगिट को मारने का, और फरमाया यनफुखु अला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंका था। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डलवाया था तो उस आग को भड़काया था इस छिपकली और गिरगिट ने अपनी फूंक मार करके उस आग को दहकाया था, उस आग को
भड़काया था, इस बिना पर इसे मारने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी बात ये कि ये जो गिरगिट होते हैं, जो छिपकली होते हैं, ये भी इंसानों के सेहत के लिए मुज़िर हैं, ये जहरीले होते हैं। वैसे तो जल्दी नहीं काटते, लेकिन जब ये काटते हैं तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बिना पर भी इसको मारने का हुक्म दिया गया है, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 3359 पर और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2237 पर और 5842 वगैरह पर देख सकते हैं। इसी तरह से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिल बज़गी फुवैसिकुन्न, छिपकली को, कि वह छिपकली जो है मुजी जानवर है, नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, लेकिन कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे मारने का हुक्म नहीं सुना था, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1831 में है। लेकिन दूसरी हदीस में कहती हैं कि साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हा बताते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म फरमाया है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 3306 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2238 और 5844 और 2239 और 5845 वगैरह पर। इस हदीस से पता चला कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था मारने का, लेकिन उनके इल्म में था कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म फरमाया है। इसी तरह से छिपकली को मारने का सवाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिरगिट यानी छिपकली को पहली बार में यानी एक बार में मार डाले तो उसको इतना सवाब है, और जो दूसरी बार में मार डाले तो उसको इतना सवाब है, लेकिन पहली बार से कम, और जो तीसरी बार में मार डाले उसको इतना सवाब है, लेकिन दूसरी बार से कम। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2240 और 5846 5848 पर। इससे आगे वाली हदीस में हदीस नंबर 5847 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, वो बतलाते हैं कि जो शख्स गिरगिट को पहली बार में मार डाले उसकी 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और दूसरी बार में उससे कम, यानी दूसरी बार में अगर मार डाले तो उससे कम नेकियां लिखी जाएंगी, और अगर तीसरी बार में उसे मार डाले तो उससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। तो ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही फरमाया है कि जो गिरगिट को मारेगा, छिपकली को मारेगा पहली बार में, उसको इतनी नेकियां मिलेंगी, जो दूसरी बार में मार डालेगा उससे कम नेकियां मिलेंगी, जो तीसरी बार में मार डालेगा तो उससे भी कम नेकियां मिलेंगी। लिहाजा उसको मारने से नेकियां मिलती हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। इसी तरह से हम आपके सामने अब उसकी वजूहात बतलाने की कोशिश करते हैं कि ये पांचों जानवरों को मारने का किस कारण, किस वजह, किस रीजन के बिना पर है। तो ये पांचों जानवरों जिस कदर भी मुजी हैं, जिस कदर नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जाहिर है उनको मारने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इंसान की जिस्मानी सेहत सबसे कीमती है। उसकी माल, उसके खाने पीने की गिजा जो जमा करके रखा हुआ है, हिफाजत करके रखा हुआ है, उस एतबार से उन सबों को मारने से उसकी हिफाजत होती है। और आप लोग जानते हैं कि कौवा और चील, गिद्ध किस कदर डाका डालने में, चोरी करने में ये माहिर हैं। मुर्गी के बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनकी जान को मार देते हैं, उनको खा जाते हैं। इसी तरह से दीगर सामान वगैरह चुरा लेते हैं, और भी जानवरों को, इंसानों को उठा ले जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ देते हैं, और भी उनके जानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से बिच्छू है। बिच्छू इंसानों को डंक मारने में माहिर है, उनके सेहत के लिए खतरा है। इसी तरह से खाने पीने की गिजाओं में
وہ اگر چلا جائے تو اس کو زہریلا کر دیتا ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں کا بھی وہ دشمن ہے بچھو. اور اسی طرح سے کاٹنے والا کتا ہے، جو انسانوں کو کاٹ لے تو اس کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کا قتل کرنا ایک تو عام جگہوں پر بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی جگہوں پر بھی اگر یہ مل جائیں تو ان کا مارنا جائز قرار دیا ہے. اسی طرح سے سانپ ہے، یہ بھی انسانوں کی جان کے لیے خطرہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سانپ اگر کاٹ لے تو انسان کا بچنا مشکل ہے. تو یہ جو موذی جانور ہیں، جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کی غذاؤں میں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں، اسی طرح سے ان کے جسمانی صحت کے اوپر جو یہ نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کو مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس لیے انہیں عام جگہوں پر بھی مارا جا سکتا ہے، اور حرم کے اندر بھی اگر یہ پائے جائیں تو وہاں پر بھی ان کو مارا جا سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، تو میں نے آپ کے سامنے یہ 7 قسم کے جانوروں کی تفصیل رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.